Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in today's class, first we will be discussing about fundamental duties, and after this completion of fundamental duties by the slides, we will move on to our board portion. ठीक है? And we will be studying the next part 5 Parliament. So today we are studying fundamental duties which are included in part 4A of the Constitution. I have already told you that this particular provision of instilling fundamental duties in our Constitution has been inspired or taken from Constitution of USSR, and the present baton has been taken by Russia. So these particular fundamental duties are not part of the original constitution. ठीक है, जो enacted हुआ था कब 1949, और जब पूरा कब enact हुआ 1950 में. So these are not the part of it. So by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, on the recommendation of Sardar Swaran Singh Committee, these have been put in our original constitution, not original constitution, our constitution. So originally, when in 1976 these have been included, these are 10 in number, but one more duty was added to the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. So presently there are 11 duties. As we all know, in 2002 Right to Education Act was passed, and in 2009 it was implemented. So 86 Constitutional Amendment Act कौन सी 11वीं ड्यूटी डाल सकता है? Of course, the responsibility of parents to nurture their child with primary education, है ना, primary and compulsory education. So the onus of providing primary education to their children are on their parents. Understood? सो ये एक ही आर्टिकल है जिसमें 11 की 11 पूरी कवर की गई हैं, एंड डेट इज़ 51A. जहाँ मैंने बताया था, जहाँ भी कैपिटल लेटर्स दिखे, डेट इज़ इंस्टिल्ड इन वाया एन अमेंडमेंट. सो 51A में 11 ड्यूटीज़ इंक्लूडेड है. पार्ट 4A में है, क्योंकि पार्ट 4 में तो DPSPs हैं. सो A फॉर अमेंडमेंट. सो पार्ट 4A इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़. As we all know, these are non-justiciable in nature. So these are only moral precepts. Okay. और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये तो आप हमेशा याद रखिए. Everything will help courts in examining और determining constitutional validity of law. चाहे वो preamble हो, चाहे वो fundamental rights हो, चाहे वो fundamental duties हो. ठीक है. Anything which is non-justiciable can be used as a tool in examining any case in judicial matters. अब वो थोड़े सा डिफरेंस ये हो सकता है कि प्रीएम्बल अपने आप में लागू नहीं होगा, बट इट कैन बी सफिक्स्ड बाय एनी article of the constitution. It means first the article of the constitution has to be read by the judiciary, and thereafter if the judiciary is in doubt, so preamble can also be read. ठीक है, तो अपने आप से preamble enforceable नहीं है, पर जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSPs हैं, DPSP अपने आप से एनफोर्सेबल नहीं है, दे आर नॉन जस्टिशिएबल, है ना. बट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज दैट इट इज़ फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा नॉन जस्टिशिएबल पार्ट, सो इट कैन हेल्प कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ. तो ये आप हमेशा याद रखिए, और यही शायद से इन वन ऑफ द एग्जाम्स इन 2020 ऑफ UPSC हैज़ बीन आस्क्ड. द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स. आई हैव सीन मैरी prelim test series of the coaching centers that include this particular point, that the fundamental duties are for both citizens and non-citizens. So आप ये भी याद रखिए, these are only for citizens. Now we will be going through one by one of the list of 11 fundamental duties. So first is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था? अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है.
नहीं याद तो रिवाइज कर लीजिए जाके। और इसी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को, टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी इन इट्स ट्रू स्पिरिट, सर्टेन प्रोविजंस हैज़ बिन पास्ड। उसमें से एक है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। सेकेंड इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स डेट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये भी 2-3 एक्ट में आ जाता है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, फिर यूआपा है 1967 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे करके कुछ है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। देन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, आसान है। टू प्रोमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ट्रांसेंडिंग मतलब ओवरकम योर रिलीजियस डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, रीजनल और सेक्शनल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो ये आप प्रियम्बल से भी कनेक्ट कर सकते हो कि टू एंश्योर ब्रदरहुड, और ये सब कॉमरेडरी जितने भी हैं आप कर सकते हो, ब्रदरहुड के जितने भी सिनोनिम्स हैं, तो वो प्रियम्बल के प्रोविजन से भी मेल खाएगा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम मैन, ऑफकोर्सली लिविंग क्रिएचर्स, मैन टू मैन तो कंपैशन है ही, मैन टू एनिमल्स एंड ट्रीज, प्लांट्स, दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एक्ट हैज़ बिन passed, not one but two. First is Wildlife Protection Act of 1972 and another is Forest Conservation Act of 1980. To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms. तो इससे भी आप बोल सकते हो कि रिफॉर्म हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही पार्ट है। सो हमको रिफॉर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जो एक ही पैटर्न पे हम चले आ रहे हैं हिस्ट्री से, उसी पैटर्न का पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो हमारे में, है ना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, ये तो बहुत आसान सा है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो डैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट, बहुत ही वेग है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, और यही जो हमने पढ़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया 2002 में, and that particular act was implemented in 2009. So उसी से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये 11th ड्यूटी हमारी ऐड हुई है। सो यही थी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। This is particular slide about the Verma Committee recommendations for the legal provisions for implementation of DPSPs। इसमें वही सब लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। एक दो चीज़ और भी आ सकती है जैसे RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, तो ये सब भी इसमें आ सकता है। सो हैव अ लुक ऑन दीज स्लाइड्स, और ये याद रखना वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस इज़ इन लाइन्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अब चलते हैं बोर्ड पार्ट पे। So the next chapter, parliamentary form of government, and we are discussing the differences between the parliamentary form and the presidential form. So this particular parliamentary form has been originated in Britain, and the whole political administration or functioning of Indian political system has been taken from Britain only. ठीक है, and this particular presidential system, see here and then in parliamentary discussions also, like Mr. Shashi Tharoor, a Congress political person, so that particular person has also argued that in India we have to adopt presidential system and abandon this parliamentary form of system. So we know in the mains exam of UPSC they can ask us what are the arguments in favor of presidential, or what are the arguments which are against parliament.
पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। इन माई बेसिक्स क्लास आई हैव टोल्ड यू द बेसिक डिफरेंस विच इज़ इन बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो वो भी आप वीडियो एक बार जाके देख सकते हैं। फिलहाल शुरू से स्टार्ट करते हैं। So this is the basic difference, not basic difference, this is the basic difference in the administrative system between parliament and presidential form of government. These are two separate blocks, understood? And this whole of this rectangle is representing India. The block on your left side is representing legislative part of government. I have told you in basic class there are three pillars, and fourth one being media. So this particular pillar is representing the legislative house and the block on the right side is representing judiciary. Okay? So as we all know, we have independent judiciary. So it has been created in a mutual exclusive manner with regards to other two parts. Now in parliamentary system, executive is the baby of legislative arm. ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर इंडिया का एग्जांपल दूं, सो फर्स्ट अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह. So they are first the member of legislative arm. First they are legislatures and then they are executives. ठीक है, हमने सचिन तेंदुलकर का भी एग्जाम्पल देखा था बेसिक्स क्लास में. सो these all the members of executive are taken from the legislatures. Judiciary पूरा अलग है. The head of the government and not the state is called prime minister. Prime minister is the head of the union executive. ठीक है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव को क्या बोला गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो मंत्री होते हैं वो यहाँ से है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से. एंड दीज ऑल आर MPs, member of parliament. If you want to know what is an MP, you should refer to my basic classes. So this is the basics of parliamentary. Now coming to presidential, there are three different pillars in the presidential administrative polity. The first one represents legislative arm, second executive, and third is judiciary. And there is a proper division, sorry, not division, separation of power. Where should I write? Separation of power seen in American Constitution. ठीक है, that's why हम बोलते हैं कि this is the pure, वो चलो दूसरे साइड में भी आ जाएगा, अभी उसके डिफरेंसेस में भी आ जाएगा, वहाँ मत नहीं जाते हैं. लेट्स फोकस हेयर. सो सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट हैज बीन अप्लाइड हेयर इन इट्स ट्रू सेंस. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द, सॉरी, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द अमेरिका. ठीक है, यहाँ किंग और इन इंडिया पर से प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द इंडिया, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. सो देयर आर ड्यूअल हेड्स.
एक गवर्नमेंट का और एक इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज फेडरेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है। सो नाउ इफ आई आस्क यू what is a parliamentary form of government, so your answer will be executive, responsible to legislature. It means every act or every policy, every action done by the executive is to be held responsible by the legislature of India. ठीक है, कोई भी बिल पास कराना है उसको लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा। If the executive is exercising some, if the executive is exercising some ordinance powers, so that particular ordinance within maximum time period of 6 months and 6 weeks should be passed by legislature. Emergency implement करानी है, legislature से पास कराओ। If the government doesn't possess certain number of MPs to create a ruling party in Lok Sabha, so that particular motion called as confidence motion should be passed in legislative houses. So in every manner executive is the baby of legislature, so implies that executive is always responsible to legislature. ठीक है, तो this was the basic principle of parliamentary form. Here I have told you executive is not responsible to legislature. Only one form, impeachment of president, can be done via legislature, which itself is too hard. ठीक है. Then comes two heads are there. I have told you, one for union executive, another for Union of India. See, we are not discussing about UK Parliament, American Parliament and Indian Parliament. This is difference between Parliament and presidential form. But as we have taken the parliamentary form of system from UK, that's why I am interchangeably using these terms India and Parliament. ठीक है, और यहाँ presidential और भी countries में है, but America is the best example, इसलिए मैं interchangeably use कर रहा हूँ. But you have to focus here. This is the difference between parliament and presidential form of system. So here no responsibility, only one head, that is president. ठीक है, कहाँ का? अमेरिका का. Here we have a term called cohabitation. And here we have gridlock. So what does this both terms mean? Cohabitation means in a parliamentary form of government, we all know president is not from any party, nor he is the member of any of the legislative houses at the union, है ना. But वो पहले तो किसी पार्टी में था, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन लड़ सकता है? कोई प्राइवेट मेंबर लड़ सकता है, इंडिविजुअल मेंबर नहीं. यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर पार्टी दैट इज सपोर्टिंग यू, देन ओनली यू कैन कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अंडरस्टूड? सो कोहैबिटेशन में क्या होता है कि पीएम और द यूनियन एग्जीक्यूटिव बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर P1 party and this president belongs to P2 party formally. ठीक है, so that's why it is the concept of cohabitation. It means living under a single room or single house. President from another party formally and prime minister from a different party, है ना, या तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऑफ कोर्स है. इन ग्रिडलॉक व्हाइट हाउस is possessed by party 1 and the legislature, the senate and the house of representatives have been occupied by party 2. It means majority of party 2 is there in legislative houses and
व्हाइट हाउस हैज बीन कंट्रोल्ड बाय सम अदर पार्टी, लाइक ये डेमोक्रेट्स की होगी तो ये रिपब्लिकन्स की होगी, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रिडलॉक। ऑब्जर्व दिस, आगे चलते हैं। So these are the next differences. The first one is collective responsibility. The whole union executive or council of ministers are responsible collectively to the in general parliament, in particular lower house of legislature, that is Lok Sabha for Indian context. And the individuals, ये मैं extra बता रहा हूँ, and the individual union minister is responsible to the president, ठीक है, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे. Here there is no such concept. I have told you executive is not responsible for legislature. Here I have told you that Mr. Narendra Modi is first the member of the legislative house and second he is the member of union cabinet or union executive. So he possesses dual membership, पहली पार्लियामेंट की, दूसरी यूनियन एग्जीक्यूटिव की, ठीक है. Here it is only single. Why? Because I have told you the two pillars executive and legislature are mutually exclusive. So एक दूसरे का मेंबर नहीं हो सकता और एग्जीक्यूटिव पहले का मेंबर नहीं हो सकता. We have seen fusion of powers because I have told you there are only two brackets, है ना. क्या क्या थे? In parliamentary form we have seen that we have the judiciary pillar which is separate and legislature pillar in which we have also included executive circle, ठीक है. So there is kind of fusion of powers because these members which are constituting the union executive has been extracted from the legislative houses of parliament. Here there is separation of powers, ठीक है. I have told you there are three mutually exclusive pillars and none is responsible to one another, है ना. This is more of a party system. In a parliamentary system, we want parties to dominate. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम पार्लियामेंट्री से जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो तभी अपनाते हैं वेयर देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है. इन यूएसए वी ऑल नो देयर आर ओनली टू गवर्नमेंट्स और ये तो इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं. मेन डिफरेंस ये है हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस है ना. क्योंकि इंडिया अकोमोडेट्स अ लार्ज डाइवर्सिटी सो देयर आर वेरियस सेक्शंस इन इंडिया. सो इफ दे ऑल हैव टू बी इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर तो कंडीशंस नहीं आएंगी सेसेशनिस्ट जो कंडीशंस होती है उसकी, नक्सलिज्म जैसी कंडीशंस नहीं आएंगी, ठीक है. सो दिस इज मोर ऑफ अ party dominated system and here a single person can also contest for presidential election,
ठीक है। और दूसरी बात ये है, एक और पॉइंट ये है, इसमें जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव होंगे वो विद इन पार्टीज के ही होंगे, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी मन चाहे यू कैन इंक्लूड इट इन योर यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जैसे मैं अगर यूएसए सिटीज़न हूँ और मैं प्रेसिडेंट बन गया यूएसए का, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को उठा लूँगा, ठीक है, एक मेरी बुआ को उठा लूँगा, किसी को भी उठा लूँगा, है ना। तो इसका मेरिट भी हम यही देखेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, सॉरी इसका डीमेरिट भी यही देखेंगे हम कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। इफ प्रेसिडेंट इज अडेप्ट, so he will choose expertise persons. So this particular union executive in the presidential form of system is expertise in their respective areas. Defense minister किसी आर्मी एयरफोर्स नेवी पर्सन को बनाओ, फॉरेन मिनिस्टर किसी अच्छे डिप्लोमेट को बनाओ, फॉर्मर डिप्लोमेट जो IAS है उसको। So these kind of expertise he can choose, and on the other hand he can also choose his relatives, जैसे मैंने अपनी बुआ को चुन लिया था। सो दिस पर्टिकुलर डीमेरिट इज गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स, सो इट कैन टेंड बोथ साइड्स। हेयर ओनली एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हैव द चांस टू बी अपॉइंटेड एज यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ देखी हुई है ना। तो ये एक डिफरेंस हो गया। ये हम मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्ब दिस। पार्टी सिस्टम में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जितने मैंने बताया उसके अलावा, कि यहाँ पूरी पार्टी ही रूल करेगी, है ना। पर यहाँ कौन सिंगल भी आके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, तो ये तो बहुत आसान सा हो गया। These are the last 2 points. There is homogeneity in political ideology. क्यों? क्योंकि पार्टी डिक्लेयर्स हिज होल मैनिफेस्टो बिफोर इलेक्शंस, सो देयर इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी in ideology of the party. Each and every member of the party have to respect the same ideology which are governed by others. In this there can be पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपना पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव चुन रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या है, वैसे तो हम रियल में देखते हैं यहाँ पार्टीज भी हैं, पर एक सिंगल बंदा भी खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में। इन दिस द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, बट हेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट गिवन द पावर टू डिसॉल्व Lok Sabha at its own will. So these are the differences between parliament and presidential form. मेरिट्स से स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म के मेरिट्स क्या है? पहला बात है वी वॉन्ट एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट।
सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज प्रिफर्ड ओवर प्रेसिडेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव हाउसेस। डीमेरिट इसी का क्या है, इसी पर पर्टिकुलर का डीमेरिट क्या है? इफ यू वांट टू हैव स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स अनस्टेबल गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ कोलिशन, है ना। बार बार एग्जीक्यूटिव को शो करनी पड़ेगी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन made victorious or the confidence motion has been defeated in the lower house of the parliament, then the government has to resign। ठीक है, सो यही इसका डीमेरिट भी है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ, है ना। ये पॉइंट दोनों तरह से लिया जा सकता है, एक तरह से मेरिट भी, एक तरह से डीमेरिट भी। कैसे? अगर एक ही गवर्नमेंट है तो कंसिस्टेंसी रखेगी पॉलिसीज में अपनी, चाहे वो एक टर्म के लिए आए, 2 टर्म के लिए, 3 टर्म के लिए आए। क्यों? क्योंकि उसके सबकी आइडियोलॉजी सेम है। ठीक है, पर यही पॉइंट पर डीमेरिट में कैसे डाल सकता हूँ? इस पॉइंट से अंडर द कोलिशन एरा, अगर बार बार एक टर्म, जैसे राजस्थान में लाइव एग्जांपल देखते हैं हम, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। सो बोथ द पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड बोथ वांट टू अप्लाई डिफरेंट पॉलिसीज। सो दिस इज नॉन कंटिन्यूएशन ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज। तो ये पॉइंट आप दोनों में ले सकते हो, तो ये याद रखना है। The next two merits, wide representation. I have explained it to you that India accommodates very large amount of diversity. So each and everyone or each person from a particular community can be made part of rule making body. So he doesn't feel alienated or isolated, है ना। So इससे क्या होगा, जो नक्सलिज्म जैसी घटनाएं हैं ये सारी नीचे रहेंगी, कम हो जाएंगी। So to accommodate wide representation of the people in the government, we have to have parliamentary system. The next is it prevents despotism, because in presidential system, this is not presidential system, this is demerits. So in presidential system, a particular president has been given enormous amount of powers. तो उसमें it creates a risk, a tendency towards despotism or monarch, है ना। So this particular parliamentary system, as it is governed by a group of people coming from various sections of the society, so it prevents the despotism process। ठीक है, थोड़े डीमेरिट देख लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पहले ही हमने पॉइंट देखा है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, सो दे हैव ड्यूअल मेंबरशिप्स। तो क्या हुआ? इट इज अगेंस्ट द वेरी कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विच हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन डेमोक्रेसी कंसेप्ट। सो एक तो ये है, और एक पॉइंट आप वो भी ले सकते हो कि इट कैन बी गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि इफ द प्रेसिडेंट इज वाइज एनफ सो ही विल अपॉइंट एक्सपर्टीज इन एवरी डिपार्टमेंट। तो दोनों हो सकते हैं इसमें। सो ये एमेच्योर्स वाला भी पॉइंट आ सकता है। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म के। पहले तो वही लिख देते हैं,
बाय एमेच्योर्स, या तो एक्सपर्टीज भी ले सकता है। ठीक है, अच्छा, हियर आई हैव रिटन दैट गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। तो फिर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी मैंने लिखा था, है ना, और उल्टा एक्सप्लेन किया मैंने। हाँ, तो फिर ये इसमें भी लिखा जा सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में इन डीमेरिट्स में। क्यों? क्योंकि ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल इंडिया का ही ले लो। वी हैव अ लॉट ऑफ एमपीज हु आर नॉट वेल एजुकेटेड इनफ, है ना, जो पहली बारी जीत के एंड आर सर्विंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट बाई ऑक्यूपाइंग द पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट। तो ये इसमें भी आ सकता है गवर्नमेंट बाई एमेच्योर्स। ठीक है, और इसमें भी ये आ सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो ये एक्सपर्टीज हो सकते हैं। इन अ लॉन्ग टर्म देयर इज डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज। उसमें हमने क्या देखा था, ठीक है, अगर एक ही गवर्नमेंट आ रही है बार बार, सो देन देयर विल बी कंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसीज। बट अगर जैसे राजस्थान का केस देखा कि बार बार अब चेंज हो रही है, तो ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, डेफिनेटनेस ऑफ इन पॉलिसीज। ठीक है, सो स्टेबल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज स्टेबल। या तो आप रिस्पॉन्सिबल रख लो या तो स्टेबल रख लो, एक होगा दोनों में से। तो स्टेबल गवर्नमेंट है और नॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से लड़ते रहेंगे हमेशा। क्यों? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना एक दूसरे पे। हेयर द in parliamentary form the executive is responsible to the legislature, so both are in concurrence। ठीक है, जब आएगा कोई मैटर तब तो डिस्प्यूट होगा, जब एक बार सेटल हो जाएगा तब देयर इज नो डिस्प्यूट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तभी पास करा पाएगी जब लेजिस्लेचर उसके पक्ष में हो। बट हेयर देयर इज कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स में पढ़ा था, इट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। सो यहाँ टेंडेंसी ऑफ डेस्पोटिज्म और मोनार्की, तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ। और यहाँ एक लास्ट पॉइंट आप और लिख सकते हो, देर इज नो प्रोविजन ऑफ वाइड रिप्रेजेंटेशन। जो हमने मेरिट पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म का, सो यू कैन इंटरचेंज बोथ द पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस डिफरेंस बिफोर, बट ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वी आर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड यूके पॉलिटिकल सिस्टम। द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, रिपब्लिक है, मोनार्क है। देन सेकेंड, जो अपर हाउस है वो रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स है। यहाँ अपर हाउस को फॉर द एनरिचमेंट इन द एक्सपीरियंस ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर। इट मीन्स जैसे इंडिया में अगर हो तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सारे, उन सबको लाके अपर हाउस में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसिज्म अच्छा कर पाए पॉलिसीज का, वो अच्छे आइडिया सजेस्ट कर पाए बाय अप्लाइंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट। तो यहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इन अपर हाउस।
Here Indian constitution is federal, here it is यूनिटरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है तो यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हियर अनरिटन। सो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट हम बना सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूके पार्लियामेंट। अच्छा, वाई इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं किया? सो ये अभी हमारे बुक में दिया हुआ है। एक तो रीज़न है वी आर मच फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि यूके ने हमसे हमारे ऊपर 100 साल से ऊपर राज किया है ना। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर ऊपर से हम अभी अभी आज़ाद हुआ है, ठीक है, वो भी लड़ाई झगड़े से। सो वी डोंट वांट टू क्रिएट अ मोनार्क, इसीलिए टू प्रिवेंट पर्सनल डेस्पोटिज्म वी हैव क्रिएटेड द मेजॉरिटी रूल, ठीक है, पार्टी रूल हमने अप्लाई किया। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें एक और डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है, डेट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया कैन बी फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा से जैसे मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी थी, बट इन यूके द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस ओनली। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। एक बार तीनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। Here sovereign and supreme is Constitution of India, which is having power from people, ठीक है। यहाँ sovereign कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। बट सुप्रीम कौन है? द जुडिशरी, ठीक है। और यहां कौन है? सॉवरेन एंड सुप्रीम, इट इज द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, है ना। हमने देखा था बिकॉज देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो वट एवर लॉ द पार्लियामेंट इज मेकिंग इट विल बी implemented in its true spirit and you can't go against this particular law to judiciary, ठीक है। लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं जा सकते, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जा सकते हो। और यही हमारा नेक्स्ट भी पॉइंट हो जाएगा एक। हियर एफआरस और फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, नो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स concept has been given, although there is an essence of the fundamental right concept, but as we have fundamental right list, these have bill of rights which are equivalent to fundamental right, but there is no particular list given by the UK government. Judiciary, you can go to judiciary against both legislative and executive. यहाँ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ओनली, लेजिस्लेचर के खिलाफ आप नहीं जा सकते। यहाँ भी आप दोनों के खिलाफ जा सकते हो। क्यों? बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारा नेक्स्ट ही पॉइंट है, वो ओरिजिनेटेड हुआ है यूएसए में एंड टेकन अप ऑल्सो बाई इंडिया। सो जुडिशियल रिव्यू किसके अगेंस्ट हो सकता है? अगेन बोथ के खिलाफ हो सकता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। यहाँ फिर से वही कंसेप्ट आ जाएगा। अब कैसे लेजिस्लेचर के खिलाफ करोगे? ओनली एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर इज सॉवरेन एंड सुप्रीम, तो उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता।
एंड हेयर यहाँ तो ओरिजिनेट ही हुआ था, ये तो माता है जुडिशियल रिव्यू की, तो इसमें तो होगा ही दोनों के खिलाफ। इन द केस ऑफ emergencies, Parliament will take back the fundamental rights in the case of emergency, national emergency. Here there are no fundamental rights, तो वापस क्या लेना है ना? And here the judiciary will take back fundamental rights. ठीक है? That's why judiciary is supreme. So this is the difference between India, UK and USA polity. Absorb this. अच्छा, there is one more concept in UK polity. It is called shadow cabinet. सो व्हाट इज दिस शैडो कैबिनेट? ये बस यूके की पार्लियामेंट या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दिखता है, इंडिया की पार्लियामेंट में ये नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस ऑल्सो, आप इंक्लूड कर लेना। शैडो कैबिनेट क्या होता है? So this is the polity of Britain. So this is the ruling party 1 to 3 and this is the opposition party ABC, मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। So in UK, if number 1 is the prime minister in the ruling party, so in opposition party, the opposition party will itself appoint a particular member A as the shadow prime minister. वो क्या करेगा? First of all, his function was to make this particular PM of ruling party responsible. Responsible कैसे? उसका वो criticism अच्छे से कर पाएगा. He will follow the policies or the decisions taken by the prime minister. और उसे criticize कर पाएगा अच्छी तरह, ठीक है, in the legislative houses. दूसरा function क्या है? He is टेकिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो ये दो तरह के फंक्शंस आ जाते हैं शैडो कैबिनेट अगर आप सिस्टम लेते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 डिफेंस मिनिस्टर है तो यहाँ भी एक बी पर्सन को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे एंड ही विल हैव एन आई ऑन द डिसीजंस मेक टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर 2 जो भी डिसीजंस लेगा इसको स्क्रूटिनाइज कौन करेगा? बी। ऐसे ही फॉरेन 3 इज फॉरेन मिनिस्टर और सी उसी का शैडो फॉरेन मिनिस्टर। सो दिस इज कॉल्ड शैडो कैबिनेट। सो दिस अपोजिशन पार्टी इज नॉट इन द रूलिंग पोजिशन बट ही हैज अपॉइंटेड ऑल द रेस्पेक्टिव मिनिस्टर्स जो कि पोटेंशियल मिनिस्टर्स है जब भी ये रूलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। और तब तक ये क्या करेंगे? इनके 2 फंक्शन, स्क्रूटिनाइज द पॉलिसीज एंड डिसीजंस टेकन बाय द रूलिंग पार्टी एंड सेकेंड वन दे आर एनरिचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। फिर आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी। इसके बारे में मैंने शायद से आपको बता रखा है इन बेसिक क्लासेस, फिर भी देख लेते जल्दी से। फेडरल मतलब 2 गवर्नमेंट्स को एग्जिस्ट एंड नन इज इंफीरियर टू द अदर। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंटर। इसमें वी हैव टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू रिजिड, ठीक है।
सो द पावर्स हैव बीन सेग्रीगेटेड प्रॉपरली। इसमें वी वांट टू हैव फ्लेक्सिबल, डजेंट मैटर, मे और मे नॉट बी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न या अनरिटर्न कुछ भी करो, बट आई वॉन्ट फ्लेक्सिबल, डेट्स इट। यहाँ टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इन इट्स स्पिरिट वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि वही तो इंटरप्रेट करेगा कि किसने अपनी एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन बढ़ाई है। यहाँ may or may not have the independent judiciary. Here bicameral legislature is important, एक जहाँ रूलिंग पार्टी बैठेगी और दूसरा टू रिप्रेजेंट स्टेट्स। यहाँ स्टेट्स वैसे तो है नहीं, फिर भी बैठाना तो बैठा लो, may or may not for their suggestions. So these are all the differences between federal constitution and unitary constitution. So the last part remains written and unwritten constitution, but वो तो मैंने पूरा ही डेप्थ में आई हैव कवर्ड इट इन द बेसिक क्लासेस, ठीक है। और एक छोटा सा बच जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है बेसिक क्लासेस में, और ऊपर से मैंने आपको प्रीएम्बल में भी एक्सप्लेन कर चुका। कैसे, एक फेमस लाइन है, इंडिया इज यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, और यूएसए के लिए क्या बोला जाता है, इट इज़ द फेडरेशन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टेबल यूनियन, ठीक है, बड़े टंग ट्विस्टिंग नाम है, डिस्ट्रक्टेबल। तो यही था फेडरल में। और कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं ये स्टेटमेंट, आर्टिकल 2 and 3, द यूनियन गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन रीड्रॉ द होल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, हमने किस में पढ़ा है, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। एक और अच्छा पॉइंट है, और ये मैंने आपको बता रखा है कि फेडरल word is nowhere to be seen written in our constitution, but it forms the basic part of our constitution, ठीक है। और क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक है, फेडरल तो मैंने आपको बता दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन डीपीएसपी एंड एफआर, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ आवर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट द इसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थोड़ी तबीयत डाउन है आज। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर्स। तब तक के लिए अगर आपको पसंद आती है वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।